हेलो एवरीवन, मैं शुभजीत भद्रा हूँ, कॉमर्स एक्सपर्ट। मैं आज कॉन्सेप्ट एकेडमी में जुड़ा हुआ एक रेगुलर शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को अकाउंटिंग्स का एक बेसिक जो चैप्टर है क्लास 11 सीबीएसई सिलेबस का, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करूँगा। ये टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेसिस। इट इज़ अ वेरी इनिशियल चैप्टर फॉर इंटरमीडिएट लेवल क्लास 11 सीबीएसई सिलेबस। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इंटरमीडिएट लेवल सीबीएसई सिलेबस का, प्रोसेस एंड basis of accounting. So what is accounting? Accounting is systematically maintaining business records. Business transactions are recorded process. The process is called accounting process. Identification of transactions, then summarizing, classification, and ultimately leading to preparation of financial statements. What is the purpose? The main purpose of this accounting process is to actually carry out this financial transaction documentation and preparation of financial statements like profit and loss statements, balance sheet, etc. So basically if we consider the entire process, हम लोग को entire process को देखना, ये एक 5 step process के रूप में हम लोग जान सकते हैं। पहला स्टेप हमारी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, whatever business transactions are happening that is related to some kind of payments or receipt coming through vouchers or cash memos, invoices, paying slips, whatsoever, that has to be taken care of in the first step. Then the next step is calling preparation of vouchers. The next step, subsequent step, is called preparation of vouchers. Each and individual firm, they have their own system of preparing their own voucher, because this voucher is meant to record each and every transaction, all transaction, एक transactions को ये record करता है voucher में, और जो भी document आपको stage 1 में, step 1 में उसको साथ attach कर भी दिया जाता है, चाहे वो debit transactions हो, चाहे वो credit transactions हो। Next हमारी third जो हमारी steps है, recording of all transaction in journal, recording of transactions, all transactions, that is journal entry ना। हम डेली जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस हम लोग इसको जर्नल में एंट्री करते हैं। जर्नल्स जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे सब्सिडरी बुक्स वो यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल कैश बुक एंड ऑल, सेल्स बुक, परचेज बुक एक्सेट्रा। जब छोटा फर्म है तब तो ठीक है, एक ही बुक में जर्नल की जो पर्टिकुलर फॉर्मेटेड बुक है उसमें इंक्लूडेड हो रहा है, डेट वाइज होता है हर डे का, सिस्टमेटिकली डेबिट क्रेडिट शो करते हुए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है जर्नल को और एक सपोर्ट देने के लिए, जर्नल एंट्री को सपोर्ट देने के अलग से कुछ सब्सिडरी बुक्स आपका यूज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन देन द सब्सिक्वेंट स्टेप इज प्रिपरेशन और पोस्टिंग टू लेजर। अब हर अकाउंट जो भी जर्नल में हम इंडिविजुअल डेबिट एंट्री किया है, कुछ अकाउंट्स का भी डेबिट एंट्री वहाँ पे शो किया गया है, लेकिन लेजर में सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग अकाउंट अलग अलग सेपरेट पेजेस में रहता है, और उसको हम लोग जर्नल से लेजर में एंटर करते हैं। इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। सो नाउ एवरी लेजर हैज अ सिस्टमेटिक फाइनल एंट्री ऑफ ईच ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, whether there will be salary account or any other account, there will be say any particular personal capital account or say furniture account, any expense account, any all debit and credit entries has to be properly entered in the separate account page of that particular account. The last step is preparation of financial statements, है ना, preparation of financial statements, that is what, trial balance, profit and loss statements, balance sheets, etc. While doing this process, we must take care that a trial balance has to be made before we proceed to final statement preparation from the accounting data that we have got through ledger account. This trial balance ensures that all the transactions are perfect and overall debit side and credit sides are tallying, so there is no error, and then only this trial balance can be used when everything is under balance and everything is correct for preparation of our final profit and loss account and preparation of balance sheet.
I hope everybody understood up to this 5 steps what is the basic process of accounting. Thank you. Next, we will discuss what are the bases of accounting. Basis of accounting. There are basically two bases of accounting. One is cash base, the cash basis of accounting. Another is accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting. These are the two widely used methods. In many cases, you can find some hybrid method also, which is mixture of cash and accrual, but that is where some specific cases. Under Companies Act, this cash basis of accounting is not recognized, that it is mainly suitable for small businesses having only cash transactions, and sometimes professionals like lawyers and doctors, their individual income statements they prepare on cash basis of accounting. Otherwise, business enterprises and enterprises, companies that have been formed under Companies Act, they must use accrual basis of accounting. Now, what are they? First, we will talk about cash basis of accounting. Cash basis of accounting. Cash basis of accounting tells whenever there is a transaction, business transaction, that need not be recorded promptly. Only when जब कैश का इस्तेमाल होगा, कैश का ट्रांजैक्शंस होगा, पेमेंट हो या रिसीट हो, जिसमें कैश मिला हो या कैश एक्सपेंस हुआ हो, कैश इनकम या कैश, देन ओनली आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसका एंट्री कर सकते हैं. सो इस प्रोसेस में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस. इजी, इट इज़ एन इजी प्रोसेस. बहुत ज़्यादा पर्सनल एस्टिमेट्स कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है. केवल आप उसी को लीजिए जिसका कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंट बुक में प्रॉपर्ली एंट्री करिए, एंड इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो. सो कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है, अगर कोई क्रेडिट सेल हुआ है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई चीज़ ड्यू है, उसको हम नहीं ले सकते हैं. सो फंडामेंटली देखा जाए, जब हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे, जो मेजर हमारी एक पर्पस है अकाउंटिंग सिस्टम का, दिस अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस इनकम करें, उसमें हम लोग एक ट्रू पिक्चर को नहीं दे सकते कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, एंड इट इज ऑल्सो नॉट वैलिड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत सारे रेवेन्यू हमने ऑमिट कर दिया, क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स में हुआ, या क्योंकि वो हमारी अभी कैश रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो हम उसको कैश बेसिस पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, है ना. एनीवे, हमारा जो एडवांटेजेस है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी गुड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. बेसिकली दोज हम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शन, और डॉक्टर, लॉयर या बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जो है, वो अपना कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस को फंडामेंटली मानते हैं. जो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होना है, भले इनकम अर्न हो या इनकम एक्सपेंसेस इनकर्ड हो, उसको नहीं मान सकते हैं. तो इट इज, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट शो ए ट्रू पिक्चर ऑफ actual profits and gains. Now, on the other hand, what is accrual basis of accounting? So here only cash transactions are recorded. Now, on the other hand, if you say accrual basis of accounting, what is accrual basis of accounting? Accrual basis of accounting वो होता है जहाँ पे हम कोई भी हमारी इनकम या एक्सपेंडिचर हुआ है, इनकम अर्न्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, भले उसमें कैश का ट्रांजैक्शन एकदम नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं. तो देखिए, इसमें मजा ये इस बात की है, किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड की, हम फाइनेंशियल ईयर में एक अकाउंटिंग पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो गया है, इनकम अर्न्ड या पेमेंट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, बट एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनकम likely to be earned, I mean that amount is there, that amount is being used because it will match the principles of, basic principles of accounting. Revenue and expenses of that particular period should be matched. So that concept, जो हमारा किसी particular year का revenue है, किसी particular year का expenses है, वो हमारा actually cash basis पे हम नहीं कर सकते, लेकिन इस बेसिस पे हम इसको मैचिंग प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग का, उसको हम कर सकते हैं, ताकि कोई भी इनकम अगर अर्न हुआ है, भले उसका कैश पेमेंट हमको नहीं मिला है, कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, भले हमने अभी पे नहीं किया, वो सारे ट्रांजैक्शंस इसमें एंट्री होगा. सो ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, है ना. इनकम अर्न्ड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, है ना.
जब भी ये हमारे इस ट्रांजेक्शन्स को हो गया तो हम उसको तुरंत अकाउंटिंग में एंट्री कर लेंगे। ये मेथड कंपनीज एक्ट 2013 में मान्यता प्राप्त है और ये मेथड एक मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को मैच सपोर्ट करता है और इस रिकॉर्ड में हम लोग ट्रू प्रॉफिट और लॉस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कितना हमारी कैश बेसिस में हम किसको कैसे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और एक्चुअल बेसिस पे किस तरीके से। एक पर्टिकुलर अगर हम एग्जांपल देखें तो हम ये समझ जाएंगे और बेहतर समझेंगे कि हम लोग कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मिस्टर शेखावत का कोई बिजनेस है, बिजनेस में हमारी कैश सेल्स हुआ है और कुछ हमारी क्रेडिट सेल्स हुआ है और कुछ हमारी एक्सपेंसेस है जिसमें मान लीजिए सम पार्ट पेड, सम पार्ट आउटस्टैंडिंग। सो इस टाइप की न्यूमेरिकल को हम लोग अगर बोथ कैश बेसिस वर्सेस एक्चुअल बेसिस मेथड में नेट प्रॉफिट क्या हुआ इसको हम देखना चाहेंगे। नेट प्रॉफिट क्या हुआ इसको हम देखना चाहेंगे, है ना। तो मान लीजिए हमारा सेल्स हुआ है 4 लाख की, क्रेडिट सेल्स हुआ है मान लीजिए 1 लाख की, ठीक है। और हमारी जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में हमने एक्सपेंस इनकर्ड किया, मान लीजिए पेड इन कैश 50,000 और कुछ हमारी 30,000 आउटस्टैंडिंग है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोथ अंडर कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस। तो हमारी क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि हमारी किसी बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट पे, ये लास्ट एंड ऑफ द ईयर में ये आया है कि 4 लाख की कुछ कैश सेल्स हुआ है और 1 लाख की क्रेडिट सेल्स हुआ है और उनका जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस है 50,000 उनकी पेड है ऑलरेडी और 30,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम नेट प्रॉफिट इस बिजनेस का कितना मान लें। तो बोथ मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो हमको ये देखना है कि कैश बेसिस पे नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है और एक्चुअल बेसिस पे नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी। तो हम यहां पे लिख देते हैं कैश बेसिस और यहां पे लिख रहे हैं हम एक्चुअल बेसिस, एक्चुअल बेसिस। तो हमारा जो कैश सेल्स था कितना था, 4 लाख। यहां पे भी हमारा कैश सेल्स 4 लाख। यहां पे हमारा क्रेडिट सेल्स 1 लाख। यहां पे हमारा क्रेडिट सेल्स 1 लाख। यहां पे हमारा एक्सपेंसेस 50,000 प्लस 30,000 आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यहां पे हमारी एक्सपेंसेस कैश 50,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ अगर हम ये डिवाइड एक कर दे कि हमारा एक्चुअल जो इनकम और नेट प्रॉफिट हमको निकालना है
तो देखिए यहाँ पे हमारा इनकम जो है, हम कैश जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग टिक कर ले पहले इनकम में, केवल ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, और एक्सपेंसेस में केवल कैश ट्रांजैक्शन हमारी ये है। तो कैश बेसिस मेथड में हमारा इनकम है 4 लाख माइनस हमारा एक्सपेंसेस है 50,000, तो हमारी टोटल जो प्रॉफिट है वो है 3,50,000। क्लियर? सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस हमें, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस हमें कंसीडर करना है, क्योंकि एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो हमारा टोटल इनकम है 5 लाख, 4 लाख कैश सेल्स एंड 1 लाख की क्रेडिट सेल्स, और एक्सपेंसेस हमारी टोटल है दोनों मिला के 80,000। दिस इज कैश एक्सपेंसेस प्लस also outstanding expenses which is not yet paid, so the total expenses is 80,000। तो हमारी 5 लाख नेट प्रॉफिट जो हमारी है वो है 500,000 माइनस 80,000, दैट इज 4,20,000। so you can see the net profit in cash basis is 3,50,000, whereas net profit actual basis is 4,20,000। It is much more than cash basis and giving a realistic, more realistic picture of that particular accounting period, because although these are outstanding credit sales or outstanding expenses, but they relate to that particular accounting period, because we have to match the revenue and expenses of that particular accounting period, because in that particular accounting period it has occurred already, whether cash has received or not, that is immaterial. So it gives a more true picture of profit and loss position and financial position of the organization. It is mostly and widely accepted and also practiced by most of the organizations, and it is legally mandated by Companies Act 2013 also. Many professionals like doctors and lawyers, they use cash basis of accounting. Sometimes they also mix it. Some items they for cash basis, some items they go for accrual basis based on the taxation purpose and taxation needs, and I mean to keep the taxable income within limits, something like that. So if you have any further question, you are free to ask me, please. I am available. Thank you very much. Thanks for watching.